There's quite a chance that you may not like this bike. मेरा एक सजेशन केटीएम के शोरूम ओनर्स के साथ भी है, टेस्ट राइड अच्छे से दिलवाएं। आई एम वेरी श्योर पीपल विल एंड अप बाइंग दिस बाइक। आप इसको स्प्लेंडर की तरह फील कर सकते हैं इस बाइक को जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बाइक को खरीदने के मूड में हैं, अगर आपने और जब इस बाइक को आप 80 क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद ये बाइक बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती है। लेकिन जो आपका क्रूजिंग स्पीड है 80 टू 110 120, उस पर ये बाइक हिमालयन 450 से बेटर हो जाती है। So there are certain kind of bikes when you ride with them for the first time, they are quite annoying, irritating, because if you ride them for the short period of time, like say when you go for a test ride, and they will give you a bike to ride for 5 to 10 kilometers, and you actually don't get the feeling of that bike. You are not able to feel the overall dynamics of the bike, and then you feel that such bikes are not that great. But as you ride those bikes for a few days or a longer duration, at least 100 to 200 kilometers, then you realize that these bikes are made for a purpose, and then you start falling with such bikes. This new KTM Adventure 390X is one of those such bikes. So this bike belongs to my friend Gaurav, and he was gracious enough to lend me this bike for 3-4 days, and I have ridden this bike for, let's say, 100-150 kilometers, and I have started growing some kind of affection with this bike. This bike is very different as you compare this bike with the older version, which is older Adventure 390, which was quite intimidating. And with 855 millimeter of seat height, I never felt comfortable with that bike. A guy with my height, like 5'5", 5'6", feel very uncomfortable. And I am not of that group of people who say that you need to have skills to ride a tall bike. I have a very contrary view because I feel you should be comfortable with the bike, and I never felt comfortable with that bike. Now coming back to the original view where I started with, that there are certain kind of bikes which actually initially irritate you. So this bike, if you go to the KTM showroom and go for a test ride, there's quite a chance that you may not like this bike, because they will give you maximum 5 to 10 kilometers of a short trip on which you have to make an opinion whether to buy this bike or not. And that short duration of test ride will definitely will not be enough for you to make a decision. Sorry, I'm sweating because I'm shooting this video in a basement because it's raining outside. So the engine of this bike is 399cc 4-stroke liquid cooled DOHC mill. So this bike produces 39 Newton meter of torque and 46 PS of power. So this bike has 19-inch of front tire and 17-inch of rear tire. It comes with alloy wheel X version. If you go with S version, they both have a tubeless spoke wheel tire, where the front tire becomes 21-inch. This comes with a 320 mm of front brake caliper, and if you go to the rear, it is 240 mm of disc in the rear, 320 in the front, 240 in the rear. This bike comes with all LED setup, और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है. आई थिंक ये अपने कंपटीशन में सबसे अच्छी इल्यूमिनेशन ऑफर करेगी बाइक, अगर आप इसको रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450 के साथ कंपेयर करेंगे तो. इट कम्स विथ 14.5 लीटर ऑफ टैंक, और अच्छी चीज़ इसमें है कि इसके जो स्विच गियर्स हैं बहुत ही प्रीमियम हैं और ये इल्यूमिनेटेड हैं. So it has got kill switch on this side, starter switch on this side, and also rest of the button on the other side. Horn is also decent, और इसकी जो डिस्प्ले है वो 5
इंच का TFT डिस्प्ले है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड. आई थिंक एडवेंचर S और एडवेंचर X में डिस्प्ले में कोई भी फ़र्क नहीं है. इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीब 228 mm का है, विच इज़ वेरी डिसेंट. आई थिंक इट विल बी एबल टू मैनेज ऑल द स्पीड ब्रेकर्स एज वेल एज potholes. The seat height of this bike is 825 mm and the weight of the bike is just 181 kg, so which will be quite manageable. It's a very light bike. It comes with a type C socket to charge your mobile on the go. The rear view mirror of this bike are really good, very sturdy, and they don't vibrate at all. So जैसा मैंने बताया था कि इस बाइक की जो हाइट है वो 825 है और वो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अप्रोचेबल है. मेरी हाइट फॉर द रेफरेंस इज 5 feet 6 inches. सो आई विल शो यू हाउ comfortable this bike is. So if you see, I am able to manage this bike very nicely. My both feet are on the ground. I'm tiptoeing, but I'm comfortable because the bike is very light, just 181 kg. So despite not having full feet on the ground, I can still manage this bike. इस बाइक में कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इसमें कोई कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है. इसमें एक ऑफ रोड मोड है जिसमें बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है और इससे ज़्यादा जो भी ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं. तो जब मैं बाइक को ड्राइव पे लेके जाऊंगा, चूँकि इस समय बाहर बारिश हो रही है, तो जब बारिश रुकेगी मैं इस बाइक को बाहर लेके जाऊंगा और मैं तब आपको अच्छी तरह बता पाऊंगा कि इसकी जो डायनेमिक्स हैं वाइल राइडिंग वो कैसी हैं. अब मैं आपको मिलूँगा GoPro मोड पर जब मैं इस बाइक को बाहर ले जाऊंगा राइड करने के लिए. सो दिन में मुझे जो इसके मैंने स्पेसिफिकेशंस वगैरह की जो बात की थी तो वो मुझे बेसमेंट में करनी पड़ी. उसका रीज़न ये था कि हल्की सी बौछार पड़ रही थी और मुझे लगा शायद बारिश हो जाएगी. तो अभी मैं जा रहा हूँ मालवीय नगर और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बाइक मेरे मित्र की है, गौरव, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू गिव मी दिस बाइक टू हैव एन एक्सपीरियंस. सो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस बाइक टू हिम बिकॉज ही इज़ लिविंग फॉर माउंटेन्स टुमारो और उसको बाइक वापस चाहिए. जब मैं बाइक लेके आया था करीब 3 से 4 दिन पहले, तो मैंने इस बाइक को काफ़ी तेज़ चला के देखा था. तो बाइक बेसिकली it has got 2 different characters. So when you ride this bike below 80, this bike behaves very differently. और जब इस बाइक को आप 80 क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ये बाइक बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती है. अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्या है इस बाइक में जो ये बड़े डिफरेंटली बिहेव करती है. देखिए, ये सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड सो बीइंग अ सिंगल सिलेंडर इंजन, this engine is having a very true noisy vibey character at a lower RPM. So जैसे अभी मैं 6th गियर पे हूँ और मैं 60-65 के आसपास चला रहा हूँ इस बाइक को, तो मुझे फुटपैक्स पे हल्के से बज़ आ रहे हैं. लेकिन जैसे ही मैं 80 क्रॉस करता हूँ और 120 तक इसको खींचता हूँ तो ये जो वाइब्स हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है फील होता है. तो ये इस बाइक का एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है कि ये बिलो 80 अलग तरीके से बिहेव करती है और अबव 80 अलग तरीके से बिहेव करती है. सो अब एक एक करके एक एक चीज़ देखते हैं. तो इंजन की बात अभी ख़त्म करते हैं कि जो इंजन है वो थोड़ा उसका कैरेक्टर सिंगल सिलेंडर होने की वजह से वाइबी है और एक सर्टेन RPM के बाद बहुत ही स्मूथ हो जाता है. तो अगर आप मेरे जो वीडियो के पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो मैंने बोला था ना कि इनिशियली बाइक आपको थोड़ा एनॉय करती है. वो इसीलिए एनॉय करती है कि जब आप इसको लोअर RPM में लो स्पीड पे चलाते हैं तो बाइक का वाइबी कैरेक्टर और नॉइजी कैरेक्टर जो इंजन का है वो बाहर आता है. और जब आप टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो नॉर्मली यही कैरेक्टर आपको फील होता है. उस समय जैसे मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई कैसी लगी आपको टेस्ट राइड में बाइक, तो सबने बोला यार बाइक में वाइब्रेशंस हैं और मज़ा नहीं आया यार बाइक में. तो वाइब्रेशन है, बज़ है, आई वुड नॉट से वाइब्रेशन है, बज़ है, वो इरिटेटिंग नहीं है. तो जब आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बाइक को ट्रायल के लिए ले जाते हैं तो
वो नॉर्मली आपको पूरी राइड के दौरान आपको वो वाइबी नॉइजी कैरेक्टर ही फील होता है। लेकिन जब आप इस बाइक को जैसे ही आप 80 क्रॉस कर लेते हैं तो आपके फुट पैक्स और जो सीट पे हल्की सी बज़ आती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी जैसे ही ये मैं 78 80 नाउ द बाइक हैव बिकम वेरी स्मूथ, अब ख़त्म हो गया सब, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ द बाइक। सो ये इंजन में ये इसका डुअल कैरेक्टर है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बाइक को ख़रीदने के मूड में हैं, अगर आपने इसको एक वन ऑफ द ऑप्शन रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा चलाएं। रिक्वेस्ट करें KTM शोरूम ओनर्स को कि आप थोड़ा सा मुझे समय दें बाइक के साथ में, उसके बाद ही एक ओपिनियन बनाएं बाइक आपको लेनी है नहीं लेनी है। तो इस बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है हिमालयन 450 के साथ में। अब आप जब उस बाइक की टेस्ट राइड लेने जाते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है लोअर RPM पे और लो स्पीड्स पे वो स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। और जब उस बाइक को आप 80-90 के ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन आ जाता है। नॉर्मली जब आप टेस्ट राइड लेते हैं तो आप शहरों में इतनी स्पीड पे तो चलाते नहीं बाइक को, तो आपको बाइक की छोटी टेस्ट राइड में बिल्कुल पसंद आ जाती है तुरंत। इस बाइक के साथ ये होगा कि शायद अगर आप छोटी डिस्टेंस की टेस्ट राइड लेंगे तो आपको ये बाइक हिमालयन से वाइबी लगेगी, आपको लगेगा इसमें हिमालयन से ज़्यादा बज़ है। लेकिन जो आपका क्रूजिंग स्पीड है 80 to 110 120, उस पर ये बाइक हिमालयन 450 से बेटर हो जाती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसा एक मुझे गौरव ने बाइक दे दी अपनी चलाने को, या तो उसकी बाइक लेके आप एक्सपीरियंस लें। जैसा मैंने बोला KTM शोरूम वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि आपको एक लंबी टेस्ट राइड दें। और मेरा एक सजेशन KTM के शोरूम ओनर्स के साथ भी है कि अगर इस बाइक को आपको पसंद करवाना है ज़्यादा लोगों को, तो थोड़ा टेस्ट राइड अच्छे से दिलवाएं। आई एम वेरी श्योर पीपल विल एंड अप बाइंग दिस बाइक। तो ये तो हो गई इंजन की बात। अब बात करते हैं इसके सिटी ट्रैफिक में इसको यूज़ करने की। जैसे बाइक की जो बैलेंसिंग है, इस बाइक में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये बाइक इसमें एक स्क्रॉल फीचर है और बाइक ट्रैफिक में धीमे धीमे बढ़ती रहती है आगे। अगर आप क्लच छोड़ दें तो बाइक धीमे धीमे बढ़ती रहती है फर्स्ट और सेकंड गियर पे, आपको एक्सीलेटर का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक इसका बाइक का बहुत अच्छा फ़ीचर है। तो ट्रैफिक में जैसे मैं चला रहा हूँ तो बाइक में मुझे बहुत कम एफर्ट लेना पड़ रहा है। एक और इस बाइक का कैरेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बाइक की बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। ये टॉप हैवी बिल्कुल भी नहीं है, अनलाइक हिमालयन 450 जो कि बहुत टॉप हैवी है। और वो बाइक स्लो स्पीड पे बहुत भारी फील होती है। ये बाइक बहुत हल्की तो नहीं कहूँगा, 181 kg है तो लेट्स से 20 किलो या 15 से 20 किलो हल्की है, लेकिन वो ये कम से कम बाइक 50 किलो हल्की लगती है। बहुत ही सेटल्ड बाइक है। आप इसको स्प्लेंडर की तरह फील कर सकते हैं इस बाइक को जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं। तो ये इस बाइक का एक स्ट्राइकिंग फीचर मुझे लगा कि ये बहुत ही इजी टू मैनेज बाइक है इन द ट्रैफिक सिचुएशंस। आप इसको बड़े आराम से फ्लिक कर सकते हैं और छोटे से स्पेस से निकाल सकते हैं। ये मतलब जब आप ट्रैफिक में कोई हैवी टॉप हैवी बाइक लेके जाएंगे ना तो आपको उसमें बहुत परेशानी होगी, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर आपको इस बाइक को डेली कम्यूट के लिए भी लेना है ना तो ये बहुत अच्छी बाइक है। ट्रैफिक में अभी मुझे कोई हीट महसूस नहीं हुई, इंजन चल रहा है, लेकिन जो हीट है वो मैनेजेबल है। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लग रही। मैंने राइडिंग पैंट नहीं पहनी है। आई वांटेड टू फील द हीट बिकॉज आप राइडिंग पैंट पहन के तो ऑफिस जाएंगे नहीं, तो आई जस्ट वांटेड टू फील द हीट। तो पंखा चल रहा है लेकिन मुझे हीट महसूस नहीं हो रही है। सो अगेन गुड पॉइंट दैट गोज़ इन फेवर ऑफ KTM 390X। अब बात करते हैं सस्पेंशंस की। तो इसमें अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके सस्पेंशन में एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है फ्रंट सस्पेंशन में। आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ और ये मैंने ब्रेक लिए तो बाइक डाइव नहीं करती है, तो फीडबैक बहुत अच्छा आता है इस बाइक का। जैसे अभी मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये जा रहा हूँ मैं और ये मैंने ब्रेक लिया तो बाइक ये ब्रेक लिया, बाइक डाइव बहुत ज़्यादा नहीं करती है। जबकि इस नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका इतने फ्लश सस्पेंशन होने पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ब्रेक मारते हैं तो बाइक नोज डाइव करती है, वो इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है।
सो इससे क्या होता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी बाइक जब आप एकदम से आपको, जैसे फिर से दिखाता हूँ मैं, जैसे मैंने ब्रेक मारा, बाइक डाइव नहीं करती है, बाइक रुकने की कोशिश करती है। तो इसका, जबकि जब आप पॉट होल वगैरह में जाते हैं तो यही सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड विद दिस बाइक। रियर सस्पेंशन मुझे मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड है। आई वुड लाइक इट मोर सॉफ्टर। मे बी अगर इसको प्री एडजस्ट करेंगे तो शायद कुछ बेटर हो जाए। आई डोंट नो, आई हैव नॉट इवन टच्ड इट। मैं जानबूझकर इस समय निकला इस बाइक को लेकर के। आई वॉन्टेड टू फील दिस बाइक इन अ नॉर्मल सिटी ट्रैफिक। तो नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग पे अगर इस बाइक को आप निकालेंगे तो वो कैसी फीलिंग होगी, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। और मुझे लग रहा है कि बाइक को आप एक डेली यूज़ बाइक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, वो सीट कंफर्ट के बारे में काफ़ी बात हो रही थी, बट मुझे लग रहा है कि सीट ठीक है, क्योंकि सीट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सॉफ्टर सीट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वो फिर आपको नंबनेस देती है। अगर आप थोड़ी सी हार्ड सीट होती है, विच इज़ नॉट वेरी हार्ड लाइक बेंच, बट आई थिंक ये जो कुशनिंग है ये लॉन्ग राइड के लिए अच्छी होती है। मे बी अगर आप इसको डेली कम्यूटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शायद यू मे लाइक अ लिटिल सॉफ्टर सीट, बट आई थिंक आई वुड हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस सीट। हाँ, एक बात है कि इसका जो पिलियन पोर्शन है सीट का, उसमें कुशन ना के बराबर है। तो हो सकता है कि अगर आप इसको पिलियन के साथ यूज़ करेंगे तो पिलियन जो राइडर है आपका वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगा। अब ये इस समय मुझे हैंडल पे बिल्कुल भी वाइब्स नहीं आ रहे हैं। हैंडल पे वैसे इसमें ज़्यादा वाइब्स आते भी नहीं हैं, हल्का सा सिर्फ आपको फुट पैक पे वो भी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इसकी डिफरेंट है कि जो बज़ है वो मुझे सिर्फ राइट फीट पे आ रहा है, राइट फुट पैक पे ही बज़ है, लेफ़्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप कोई डैम्पनिंग वॉशर जैसी कोई चीज़ या रबर की कोई वॉशर जैसे आते हैं, अगर वो लगा लेंगे फुट पैक पे, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कल मैं इस बाइक को रात में चला रहा था और कुछ काम से निकला था, कुछ मुझे सामान खरीदना था घर का, तो मैं ये बाइक लेके चला गया और मैंने जानबूझ के इसमें वैसे फॉग लैग गौरव ने लगवाए हुए हैं, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं किए। आई वांटेड टू सी कि शहर में इसकी जो लाइट है वो कैसे परफॉर्म करती है। तो आई थिंक इसकी जो लाइट है वो क्लास लीडिंग है। अगर आपको इसको शहर के बाहर नहीं ले जाना है हाईवे पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सेसरीज़ में लाइट ऐड कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी लाइट बहुत अच्छी है और सफिशिएंट है। मेरे पास टाइगर 900 है, जैसा आपको पता ही है, और उसकी लाइट भी बहुत बकवास है। उसकी लाइट होना ना होना बेकार है, जैसे हिमालयन 450 में भी वही प्रॉब्लम है। अब मैं 80 पे हूँ, कोई बज़ कोई वाइब्स नहीं है इस समय। अच्छा, एक चीज़ और है इस बाइक में कि आप 80 के बाद 140 बहुत क्विकली जाती है बाइकें। हल्का सा आप अपनी रिस्ट को फ्लिक करिए और बाइक एकदम ज़ूप करके निकल जाती है। तो ये इस बाइक में बहुत अच्छा है कि अगर आपको ट्रैफिक में निकलना है तो हल्का सा आप अपनी रिस्ट को फ्लिक करें और बाइक, ये देखिए, वेरी क्विकली यू कैन जस्ट टच 100 वेरी इन नो टाइम। और जैसे आप 90-100 पे आते हैं ना, बाइक अपना एकदम कैरेक्टर चेंज कर लेती है, बिल्कुल डिफरेंट बाइक फील होती है ये। सो आई हैव फॉलन इन लव विद दिस बाइक। सो ये एक ऐसी बाइक है, अगर आपको एक ही बाइक रखनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये आपके एक नॉर्मल डेली कम्यूटर की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको हाईवे पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बाइक का जो डुअल कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार है। अब आते हैं ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली मैं पिछला ब्रेक नहीं यूज़ करता हूँ। आई 99% ऑफ द टाइम यूज़ ओनली फ्रंट ब्रेकिंग, और इस बाइक का फ्रंट ब्रेकिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ब्रेकिंग ठीक है, लेकिन जो बाइक का जो एग्रेशन है ब्रेकिंग उसको मैच नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इसके ब्रेक पैड्स को अगर चेंज करवा देंगे, कोई अच्छी क्वालिटी के लगवा लेंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाइट कम है इसकी, ब्रेकिंग इतनी है कि आपकी बाइक अच्छे से स्लो हो जाती है और
लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको ब्रेक यूज करने पड़ेंगे तो शायद आपको ब्रेक पैड स्पेशली चेंज कराने पड़ेंगे। तो ये है ओवरऑल एक छोटा सा राइड रिव्यू इस बाइक का। मज़ेदार बाइक है, मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ जाएं, इस बाइक को एंजॉय करें और लंबी टेस्ट राइड लें। और अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो आई थिंक उससे आप उधार मांगें 1-2 दिन के लिए बाइक को। तो कमिंग बैक टू द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑन द बाइक, आई थिंक मैंने इस बाइक को 3-4 दिनों में इतना चला लिया है कि मैं एक सॉलिड ओपिनियन दे सकता हूँ। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको डेली कम्यूटर की तरह भी इस्तेमाल करनी है, शहर में ऑफिस जाना है रोज़ इस बाइक को लेकर के, एट द सेम टाइम अगर आपको इसको हाईवे पे लेके जाना है, थम्स अप 10 आउट ऑफ 10। अगर आप इसके सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, तो अगर आपको इसको ब्रोकन पैचेस पे चलाना है तो भी इसको आप ले सकते हैं। और ये बाइक सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है एज़ कम्पेयर टू एनी बाइक इन द सेम कैटेगरी। तो अब मैं थोड़ा राइडिंग पे मज़े लेता हूँ और कुछ याद आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा और यहाँ तक आपने देखा है तो अच्छा ही लगा होगा, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इट गिव्स मी लिटिल मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। बहुत ख़राब ट्रैफिक से होकर के मैं मालवीय नगर पहुंचने वाला हूं। मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया इस बाइक के बारे में। वो है इस बाइक का गियर बॉक्स। गियरिंग बहुत स्मूथ है, चाहे आप शिफ्ट करें, चाहे डाउन शिफ्ट करें, और चाहे आप न्यूट्रल को सर्च करें। ओवरऑल द गियर बॉक्स runs very smooth and it supports the engine and the performance. The clutch action is very light, so if you see I can use in with 1 finger, 2 finger, and I can actually use my pinky also to use this clutch. एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें क्विक शिफ्टर है और स्मूथ है काफ़ी। एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की कि उसका जो एक्शन है क्विक शिफ्टर का, अगर आप डाउन शिफ्ट करते हैं तो बहुत स्मूथ है, और अप शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है जर्क आता है। लेकिन अगर आप सही स्पीड मेंटेन करें तो ईज़िली आप क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हैं। तो जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूँ कि क्विक शिफ्टर का मतलब होता है कि आप बगैर क्लच यूज़ किए गियर को डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्विक शिफ्टर भी है इसमें, बट मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ क्विक शिफ्टर का, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे एक सेकंड बचा के कहीं पहुँचना है। मेरे लिए एक ये यूज़लेस फ़ीचर है, बट इस गाड़ी में है। सो इस प्राइस के बाइक में क्विक शिफ्टर होना एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ये दिल्ली का ट्रैफिक, और ये ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। आई एम जस्ट स्वेटिंग इनसाइड द हेलमेट। अब मैं इस बाइक को टेस्ट करना चाह रहा था कि ट्रैफिक सिचुएशन में अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखें ये बाइक ट्रैफिक सिचुएशन में कैसे चलती है। तो इस एफ़र्ट के लिए कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।